Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start your last chapter or third chapter, that is atoms and molecules. अंडर एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, बट इन योर सिलेबस इट इज योर चैप्टर नंबर 2 बिकॉज चैप्टर नंबर 1 get deleted from your syllabus. So today I want to discuss the last topic of atoms and molecule, that is molecular mass and mole concept. So beta यहाँ से there are some numerical which are always asked in the examination. There are some numericals like mole concept से numerical आपको आएंगे, how to calculate the molecular mass of any molecule, और formula unit mass आपको calculate करना आ सकता है. Understand? So let us discuss each topic one by one. So these two topics left in your third chapter. In the previous lecture we discussed about the how the formula of ions are formed by the reactions of metal with non metals, कि कैसे आपने molecular formula of ions का बनाना है. Understand? For example कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, कैसे आपने उनका फॉर्मूला बनाना है, तो वो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, लास्ट उसमें सीखा था. ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको आप क्या करते थे बेटा, टेबल मैंने आपको बताया था, एक टेबल है 3.3 टेबल, उसको अच्छे से लर्न करना है. इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे, इसका फॉर्मूला के नीचे की बैलेंस को राइट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ unknown ions या formula of ions. ठीक है. Now today's lecture we discuss the molecular mass. Now what is the molecular mass? If we take the example of any molecule like H2O या HNO3, the total number of the molecular mass is equal to the sum of the atomic mass of all the elements. ठीक है, that is called its molecular mass. For example H2O, ठीक है, what is the molecular mass? तो sum of the atomic mass of each element is called its molecular mass. For example, molecular mass of hydrogen is 1. So we multiply 1U by 2 plus what is the molecular mass of oxygen? That is 16U plus 1. Then it become equal to 18U. U basically unified mass. ठीक है. If it is given in gram, then it is called gram molecular mass. Now what is formula molecular mass? बेटा formula molecular mass and molecular mass both are same. The difference is if there is a आयनिक कंपाउंड, अगर कोई आयनिक कंपाउंड दिया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आयन के केस में फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास. सेम होता है. ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 23U प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5U. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं 23 plus 35.5. Then it become equal to 5, 8, 58.5U. So that is called formula molecular mass. तो formula molecular mass and molecular mass both terms are same. The difference is that formula molecular mass is used for ions and molecular mass is simply used for any molecules which are not ions. For example H2O, HNO3, CH4, etc. So you can easily calculate the formula molecular mass of HNO3 also. What is mass? 1 multiply by 1U plus
1 multiplied by 14u plus 3 multiplied by 16u. Then it become equal to 1 plus 14 plus 48. Understand? So you can easily write the answer of this question. Understand? 48 plus 15 आप करेंगे. What is the answer? 63. So that are the important that are the way how to calculate the molecular mass of any molecule. So molecular mass calculate करने के लिए बेटा आपको क्या होना चाहिए? आपको हर एक इंडिविजुअल एटम का molecular mass पता होना चाहिए. अंडरस्टैंड? सो टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया, उसमें गिवन मॉलिक्यूलर मास, कॉमन एलिमेंट की मॉलिक्यूलर मास गिवन है. सो काइंडली लर्न दीज मॉलिक्यूलर मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, वी प्रोसीड, वी आर टेकिंग सम एनसीईआरटी एग्जांपल्स. So let us discuss the NCERT question number 6, back exercise. Back exercise. तो बेटा in this topic आपसे मोलर मास पूछा है. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इथाइलिन सल्फर मॉलिक्यूल. तो इसका पूछा है आपसे इथाइलिन C2H2 का सल्फर मॉलिक्यूल. फॉर्मूला इज S8. ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल S8 फॉर्मूला है इसका. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, then hydrochloric acid, formula is HCl, and then last nitric acid, HNO2. सो क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द फॉर्मूला ऑफ ईच एलिमेंट. तो कार्बन का बेटा 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है. ठीक है, सल्फर जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है दैट इज S6 एंड S8. तो यहाँ पर S8 का पूछा है. तो वन सल्फर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वन सल्फर मॉलिक्यूल? दैट इज 32. ठीक है, 32 होता है. तो 8 का 32 हो गया, 8 का आपको कैलकुलेट करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस होता है वो P4 में एग्जिस्ट करता है. ऑलवेज रिमेंबर P4 में. अंडरस्टैंड? एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस? सल्फर से पीछे आता है तो इसका मोलर मास होता है स्टूडेंट 31. ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, आपका आंसर आ जाएगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16. अंडरस्टैंड? सो यू इजीली कैलकुलेट, जो मैंने आपको बताया उनसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक मॉलिक्यूलर मास. तो कार्बन C2H2 इथाइलिन मॉलिक्यूल 2 मल्टीप्लाई बाय 12u प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1u. व्हाट इज द आंसर? 24 plus 2 is equal to 26u. Understand? Now sulfur molecule, sulfur means 8 multiplied by 32u, then it become equal to 256u. Unified mass. Phosphorus 4 multiplied by 31 is equal to 124. हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1u plus 35.5, sorry 1 multiplied by 35.5u is equal to 36.5u. and nitric acid 1 multiplied by 1u plus
1 multiplied by 14u plus 3 multiplied by 16u, then it become equal to 1 plus 14 plus 48, then it become equal to 63u. सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए हमें, बहुत इजी है। ईच टॉपिक इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोल कंसेप्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल एक रिएक्शंस की बात करें H2 प्लस O2 देन इट फॉर्म, अगर हम सिंपल एक रिएक्शन की बात करें H2 प्लस O2 देन इट फॉर्म H2O, देन इट फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो बेटा किसी भी रिएक्शंस में जब नंबर ऑफ एटम्स को हम शो करते हैं तो ये तो बेटा एक तरह से ये बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं इसके, ठीक है। बट मोल की टर्म में किसी भी एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल्स को किसी भी इक्वेशंस को राइट करने के लिए उसके नंबर ऑफ द मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट नंबर ऑफ द मोल्स फॉर एनी एटम, बेटा जो मोल टर्म है बेसिकली उसका मीनिंग होता है हीप और पाई, ठीक है। कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, कोई भी एक सिंपल एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें नंबर ऑफ द एटम्स होते हैं, ठीक है। तो उनका नंबर जो होता है 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट उसकी जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। वो ऑलवेज फिक्स होती है दैट इट बिकम इक्वल टू 6.023 into 10 raised to power, कई बुक में 0.022 लिखा होता है, नो इशू, ठीक है। 6.023 into 10 raised to power -23 ग्राम। सो बेटा ये जो आपकी एवोगैड्रो नंबर वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज इक्वल एंड इट इज फाउंड फॉर एवरी एलिमेंट दैट इज 6.0223 into 10 raised to power 23, 20 माइनस नहीं होगा 23, 10 raised to power 23 एंड इट इज फिक्स्ड फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एटम के लिए मॉलिक्यूल फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको वाटर का एग्जांपल बताया, व्हेन 2 मोल ऑफ H2 react with 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये तो बेटा एक एलिमेंट्री है, अगर हम ये तो क्वांटिटी को नाप रहा है, बेसिकली ये क्वांटिटी को मेजर कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी। सो मोल कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ कि किसी भी नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनता है तो उसके जो पेरेंट मॉलिक्यूल होंगे जिनसे वो बना है मॉलिक्यूल वो फिक्स होंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू आज फिक्स होगी। क्योंकि आपको पता है एक मॉलिक्यूलर H2O का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो इट मींस दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर में 18 अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे उसका मोलर मास आएगा 18, इट मींस दैट 18 को हम 1 मोल मानेंगे। समझ आ रही बात आपको। और उसमें नंबर ऑफ द एटम ऑलवेज फिक्स होते हैं दैट इज 6.023 into 10 raised to power 23 ग्राम। सो मोल कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, इसके लिए मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि हर एक एटम को इंडिविजुअली क्या करना है, काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। उसको आप डजन में लेंगे या ग्रॉस में लेंगे तो उसको बहुत डिफिकल्ट है काउंट करना। सो मोल
टर्म इंट्रोड्यूस की गई है किसी भी एटम में नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ द मोलर मास निकालने के लिए, या फॉर्मूला मोलर मास निकालने के लिए, या नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए। एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज हर एक एलिमेंट में, चाहे आप ऑक्सीजन मान लो कि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का 32 हो गया क्योंकि O2 में एग्जिस्ट करती है, तो उसमें जो एवोगैड्रो वैल्यू होगी वो भी फिक्स होगी, दैट इज 6.023 10⁻23 ग्राम। अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट, काइंडली नोट डाउन द एवोगैड्रो नंबर। और जो मोल होता है, मोल बेसिकली, मोल का मीनिंग होता है हीप ऑफ एटम और पाइल ऑफ एटम। Understand? So it is very difficult to count the every atom. हर एक एटम को काउंट करना डिफिकल्ट है, सो दैट्स व्हाई मोल टर्म इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो काइंडली डियर स्टूडेंट, काइंडली नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट नंबर। सो डियर स्टूडेंट, जो आपकी मोल टर्म है, ठीक है, बेसिकली ये 1896 में विलम पोस्टबॉर्ड ने दी थी, ठीक है, उसने ये मोल टर्म दी थे जिसका मीनिंग होता है हीप और पाइल ऑफ एटम, तो ये 1896 में दी गई। एंड हर एक एटम के लिए नंबर ऑफ द मोल्स ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं। सो लेट अस कंसीडर सम फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल कंसेप्ट में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी, नंबर ऑफ द मोल्स आपने कैलकुलेट करने। एक क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स, n स्मॉल n, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। एंड ये होते हैं बेटा m/n के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m इज इक्वल टू द गिवन मास, कैपिटल M इज द मोलर मास। of element। सो बेटा इसको नंबर 1 मान लो। अब यहां से आपका m आ जाएगा। हाउ यू कैलकुलेट द अननोन मास? अननोन मास आपने कैसे कैलकुलेट करना है? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय n, इसको नंबर 2 मान लो। नाउ बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन दिए, ठीक है, सो आपको मान लो क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, कोई वैल्यू आपको दी होगी 10 रेज़ टू पावर में, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने ऑब्टेन करने हैं। तो ये जो n होता है फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट? n/n0 या Na। n, where simple n is the given number of the moles and Na is the Avogadro number. Understand? So by putting ये जो where n is equal to given number of particles
मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा बेटा, तब आपको समझ आएगा ज़्यादा। एन ए या एन नॉट लिखा होता है कहीं पर, एन जीरो एन नॉट, तो दोनों सेम है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। Avogadro number. Now, by putting this value in this equation, m is equal to n upon n naught या a multiplied by n. लगा दो।